हेलो हेलो एवरीबॉडी। व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिंकन रूट्स पॉडकास्ट। आई नो दैट you didn't hear Vivek today because he's not here. विवेक साहब जो हैं हमारे, वो वादियों में थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं डाउन टाइम। तो डोंट वरी, आई एम नॉट लीविंग यू टू जस्ट मी एंड माई सेल्फ। आई हैव some amazing guests for you. And without any ado, I'm just going to call each and everyone here. These people who I'm going to call today, who are going to be with us, they are three amazing friends of mine. I have had so many memories, so many different incidents and accidents, as I must say, with all of these beautiful people. I'll quickly just call them up here. So, the first person who is here with me today on this podcast is my best friend from class 6th, I guess. It's been over 14, 15 years that we have been together. Or he's an engineer. Calling up on the podcast first, please, everybody, give a big round of applause to Gaurav Shekhawat. Hi Sumit. First of all, thank you for inviting me here. Sure, And man, of course. I have heard your episode 1 and episode 2. They were really good. And मुझे तब से ही join करना था. मुझे बस ये पता नहीं था मुझे इतना जल्दी time मिलेगा. But again, thank you for inviting. Oh, great sport. Thank you so much. मतलब हम पता नहीं इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2 घंटे से भी यही बात कर रहे थे। Maybe. But okay, good to be here. I mean, I'm talking on your behalf, but yeah, great. Okay, so up next, the next person that I'm going to invite here is another really good friend of mine. हम लोग भी स्कूल से ही साथ हैं. Oh, just a weird realization that all the people here are my school friends also, are my college friends also, and are my professional friends also. What the fuck, guys? I looks like I'm stuck with you all now. Yeah, dude. I'm not complaining. You should also not. Yeah. Anyway, calling up on the next person, he's the one who to whom I go to whenever I feel low. क्योंकि अगर हमारे ग्रुप में किसी को भी कभी हंसना होता है, तो हम सिर्फ इसी बंदे से बात करते हैं. एंड आई एम श्योर you would know why I'm saying this. क्योंकि जो ह्यूमर का लेवल इस भाई साहब का है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. मतलब you can't even imagine. So, without any ado, calling up on the next person, he's an engineer again, क्योंकि हम लोग सब कॉलेज में भी साथ थे. And he's a digital media marketeer, if I may. And I am so proud to, call him my friend after he has just started a company on his own. Proudly calling on my podcast for the first time. Everybody, please welcome Gautam Bansal. For seriously this much warm welcome of mine. Actually, I don't deserve this type of appreciation, especially from your side, because दोस्तों में ये लिटरली बिल्कुल नहीं जमता. हम लोगों But को आदत नहीं है ना यार इतना ऐसे प्यार से बोलने की. नहीं, बट लिटरली ऐसा मतलब वार्म वेलकम ना जिंदगी में भाई साहब मेरे ऑफिस वालों ने नहीं दिया होगा मुझे जितना तुमने दिया अभी अभी. सो Again, थैंक यू hi सो मच. Gautam. I'm here too. Oops. ये भी है यहाँ पे. फाइन. बट या थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. और कसम से यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि लिटरली मुझे अभी 3 घंटे पहले तक नहीं पता था मैं इस पॉडकास्ट में आने वाला हूँ. I सो mean, that's तो life, no? लिटरली या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. थैंक्स. And last but not the least, this person is the most serious of us all. मतलब सीरियस ऐसा पर्सनालिटी वाइज नहीं, बट हमें जब भी कोई सीरियस एडवाइस चाहिए होती है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो हम इसके पास जाते हैं. मतलब भाई साहब को ऐसा सुई से लेके और गाड़ी से लेके और बिजनेस तक का एक्सपीरियंस है.
and like I am so proud again because मुझे बोलना भी पड़ेगा क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, so this is an obligation, as well as he is so talented that he is doing a business of his own. He's helping his family financially and academically, अपने पढ़ाई से भी, अपने काम से भी, and I'm so proud that he's doing that. So without any more wastage of time, let me call Arindam Quatra. हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद अपने इंट्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। 2 रियलिटी चेक मिले मेरे को। तूने पहले बोला कि बेस्ट फ्रेंड, मुझे लगा मैं हूँ। फिर तूने बोला 6th क्लास है, मैं कहा गया मैं नहीं हूँ। फिर इसने बोला मोस्ट ह्यूमरस पर्सन, फिर मुझे लगा मैं हूँ। फिर इसने नाम लिया गौतम का, मैं कहा फिर गया। अब इसके बाद तो मैं सच में अपना इंट्रोडक्शन का वेट कर रहा था। हेलो गाइस, सब बढ़िया? सब कैसा चल रहा सब? After all these complaints, hi Arindam. मतलब हाँ, इतना कंप्लेन मेरा करने के बाद तो मन अब भर गया। बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। मेरा तो मन ही तार दिया इस बंदे ने भाई, रहने दो। तो पहले तो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज एपिसोड and in every episode that is going to come after, we are introducing a new segment to the podcast which is called Lincoln Roots Randoms, जिसमें हम कोई भी एक random topic उठाएंगे and we'll talk about that. Now that random topic could be anything ranging from current affairs, stories from the past, maybe stories from the present, कोई भी रैंडम बकचोदी, मूवीज, आर्ट, कल्चर, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर टुडेज एपिसोड द टॉपिक फॉर रैंडम्स इज स्कूल पिकनिक्स। ओके, स्कूल पिकनिक्स यार, मतलब आई एम श्योर गौरव यू रिमेम्बर जब हम लोग सब 10th क्लास में अक्षरधाम गए थे, लाइक पूरा स्कूल ऐसे 12-13 बसेस लेके, and I think It was 14. 14, you remember dude, it was so long ago. Yeah. मतलब I remember, I'm sure अरिंदम तू नहीं था ना यार उस टाइम पे पिकनिक में? मैं 10th में स्कूल में ही नहीं था। that is something, मैं 9th में आया था बस। that is something जिस पे हम like we can actually have a whole episode, but okay. Absolutely. So Gautam was not in Gautam, our, हाँ he was not yes, in our yes. school. गौतम का रिएक्शन देखा, इज लाइक कि अच्छा ओके तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे मैं बताता हूँ। सो क्या हुआ था, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा स्कूल ही था, ठीक है, हमारे पूरे Yes, स्कूल yes, all. को पिकनिक पे लेके गए थे अक्षरधाम मंदिर, और मतलब बहुत सारी जगह गए थे, आई थिंक रेल म्यूजियम भी गए थे, अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, ठीक है। तो हम और वो उस टाइम पे ना खुला खुला था अक्षरधाम, नया नया, तो इट वाज लाइक वो पूरा क्रेज पे चल रहा था उस टाइम पे। तो लाइक द ओनली विजुअल दैट आई रिमेम्बर इज कि अगर तुम ऐसा लेफ्ट से लेके ऐसा एक 180 डिग्री का टर्न लो ना देखते हुए, तो हमें सिर्फ गोल्डन वैली के बच्चे दिख रहे थे, और एंड द वर्स्ट थिंग इज कि हम सारे उसमें थे, यूनिफॉर्म में थे, ठीक है। सो देयर वाज ओनली लाइक वो जो हमारी चेक वाली शर्ट थी, ऑरेंज चेक शर्ट, सिर्फ वो ही दिख रहे थे भाई, पूरे 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 मंदिर में सिर्फ हम लोग थे। मतलब क्या क्रेजी था। And मुझे उस पिकनिक से ना सिर्फ एक चीज जो है जो बहुत अच्छे से याद है, वो ये कि मेरे को डांट पड़ी थी। और डांट भी किस बारे में? सीन ये हुआ था कि इफ यू रिमेम्बर, जब हम अक्षरधाम घूम के जब वापस बस में गए थे, तो टीचर्स हमें बिस्किट के पैकेट बांट रहे थे, पार्ले जी वाले, छोटे आते थे उस टाइम पे, तो ठीक है। तो क्योंकि हमारे टीचर्स लेजी थे, तो वो सीटों पे जा जाके दे रहे थे, वो सबसे आगे खड़े होके बस फेंक रहे थे कि कैच कर लो, ठीक है। एंड मुझे याद है, मैं तुझसे ही या शायद किसी और से बातों में इतना बिजी था कि मैंने ये सुना नहीं कि उन्होंने बोला कि कोई बीच में हाथ नहीं करेगा कब जब हम किसी और को दे रहे हैं। तो सर ने बिस्किट का पैकेट फेंका एंड इट वाज सच अ इजी कैच ना, मुझसे रुका नहीं गया।
मेरा नादान सा हाथ ऐसे आगे गया और मैंने हवा से बिस्किट पकड़ लिया, और उसके बाद जो मैंने सुना था, वो चीज मैं उस पिकनिक कभी नहीं भूल सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। और एक तो इतने मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल वाले जब भी ये पिकनिक लेके जाते थे तो ऐसी सड़ी जगह पे लेके जाते थे ना। मतलब हमारा अभी उधर अक्षरधाम में हम क्या काम, लाइक इवन इफ यू गिव अस दैट ऑप्शन कि अक्षरधाम जाना दोस्तों के साथ, हम शायद आज भी ना जाएं। लाइक हाउ स्टूपिड इज दैट थिंग। रेलवे म्यूजियम लेके जा रहे हैं, ठीक है, एंड इवन चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क या इंडिया गेट, चिल्ड्रंस पार्क, लाल किला, मतलब ये सब जगह एक तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आता ना कि क्यों लेके जाते हो भाई। मैं एक तो पहले स्कूल नहीं गया, और स्कूल गया हूँ तो सिर्फ मुझे 2 ही याद आ रही है स्कूल के नाम पे। मैं गया हूँ पिकनिक के नाम पे मदर डेयरी, इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया में मदर डेयरी। और उसके ये बाद कौन से एक और स्कूल में जगह था गया तू? हूँ, मिनर्वा अकेडमी, नजफगढ़। बड़ा ही गंदा स्कूल है। मुझे लगा है मदर्स प्राइड में था भाई। और दूसरी जगह तलियार लेक, जो साली खत्म नहीं हो रही, भाई सड़ती धूप में लेके गए। और पिकनिक से रिलेटेड मेरी 3 यादें, बस ये 2 सड़ी सी, और एक तीसरी तलियार, मेरी एब्सेंट थी। बचपन में कहीं गया था, जगह याद नहीं, बस मुझे रेड कलर का अपने टूटी वाला बैग याद है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस एनीवे बैग को शो ऑफ करने के लिए गया था पिकनिक। तलियार लेक साउंड्स बेटर देन रेल म्यूजियम। मुझे अभी भी याद है जिस पिकनिक की सुमित बात कर रहा है, हम 14 बसें फुल भर के, एक काइंड ऑफ पूरा स्कूल उठ के गया हुआ है। हमने वहां पे जो ट्रेन चलती है ना रेल म्यूजियम में, अगर याद हो तो बनाते हैं, टिकट लेनी पड़ती है आपको, और आपको फिर बैठ के घुमाते हैं वो एक छोटा सा सर्कल अराउंड म्यूजियम। हमने वो ट्रेन हाईजैक कर ली थी। किसी दूसरी स्कूल के बच्चे उसमें बैठे हुए थे, हमने ना लाइन देखी ना कुछ देखा, हम बस वहां घुसे, बच्चे चढ़ गए ट्रेन में। टिकट्स कौन देखता है? टिकट्स किसी ने नहीं ली, टिकट सारे घुसे हुए। फिर हमारे जो आई डोंट रिमेम्बर कौन एक चीज मानने पीटीआई कौन वाली था, है, वो पीछे पीछे भाग रहा था ट्रेन के। बच्चे लटके हुए हैं, म्यूजियम वाले पीछे भाग रहे हैं, मुझे याद है। और मैं और सुमित बाद में उतार रहे बच्चे, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक थे। हमको टीचर ने बोला इनको उतारो। ये लिटरली में चल रहा है। जितने स्कूलों की तरफ से मैं पिकनिक गया हूँ ना अभी तक, लिटरली हर पिकनिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है मेरे साथ ही। लिटरली जितने पिकनिक से याद आया कि मैंने भी अपने स्कूल के गोल्डन वैली के हर पिकनिक अटेंड किया, लाइक हर पिकनिक। एक आधे पिकनिक में हो सकता है कि मैं दिल्ली ना हूँ, बट रेस्ट मैंने हर पिकनिक अटेंड किया। पता नहीं क्यों जाता था मैं, बट जाता था। और भाई वो जो अक्षरधाम में इसने मूवी की बात करी सुमित, इफ यू रिमेम्बर, हमने भी मूवी का प्लान बनाया था कि हम चलते हैं मूवी देखने चलते हैं। एंड हमने जाके दीपक सर पे शायद उनसे बात करी थी कि सर ऐसे ऐसे है, ये है वो है। उसके बाद दीपक सर ने कहा था कि भाई एक बार तुम आजू बाजू देखो, बच्चे गिनो एक बार। हमें वापस भी जाना है। एंड बाय द वे सुमित, आई डोंट नो तू था या नहीं था, एक पिकनिक था जिसमें हम सिर्फ म्यूजियम्स में ही गए थे। हम डोल म्यूजियम में गए थे, एरोप्लेन म्यूजियम में गए थे, रेलवे म्यूजियम में गए थे, आई डोंट नो क्या था। और उसके बाद वो हमको किसी पार्क में ले गए थे, मे बी चिल्ड्रंस पार्क, बट वो मैं काफी छोटा था। आई डोंट थिंक कि तू स्कूल में था या नहीं था, बट डेफिनेटली हम उस टाइम पे दोस्त नहीं थे। एक तो अच्छा हाँ, फिर तो आई वोंट रिमेम्बर। तो हुआ सीन ये था कि वो मतलब पहली बार म्यूजियम वगैरह में ले गए, मेरे को मजे आ रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे। एंड अचानक से वो हमको किसी पार्क में ले गए जहां मैं खो गया था झूलों में। ओह यस मेरे साथ, मेरे को याद नहीं अब कौन कौन बंदा था, क्योंकि आई एम श्योर शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे किसी क्लास में था। एंड हुआ ये था कि वहां पे हमको वो नहीं होता, वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है जिसपे बंदे खड़े हो जाते हैं, फिर 2-4 बंदे पकड़ के तुम्हें घुमाते हैं और फिर तुम्हें चक्कर आते हैं। और फिर हम गिर जाते हैं। तो मैं उस पे चढ़ा, मुझे इतना मजा आया उस पे कि सारी क्लास मेरी आगे निकल चुकी, मैं घूम रहा हूँ। और अब मुझे नहीं पता गोल गोल घूम रहा है। हाँ, सब चलेगा आगे, मैं कहा मैं बाद में आऊंगा। और फिर सारी क्लास मेरी आगे निकल गई। और वो था भी पिकनिक, लाइक उस जैसा बड़ा पिकनिक नहीं था, सिर्फ जूनियर विंग के बच्चे गए थे। और छोटे बच्चों को जल्दी से अपने सेम टी शर्ट दिखती नहीं है, लाइक तो बहुत गंदा सीन हुआ था। उसके बाद मैं तुक्का मार के
किसी तरह लाइक रैंडम वाइब कि चल इस तरफ चलते हैं, चला आगे जाके मेरे को क्लास मिली हाँ एंड मुझे पता चला कि पता नहीं कितना टाइम हुआ था मुझे खोए हुए, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया मैं गायब हूँ। मैं सोच रहा था कि मेरे को जाते ही टीचर डांट मारेगी, बट वहां जाके थिंग्स आर ओके। हाँ गुरु एक काम करो, चलो अब चलते हैं बस में। मैं कहा क्या? लाइक थोड़ा थोड़ा थोड़ी चिंता कर लो मेरी थोड़ा तो भाव दे दो। प्लीज। घर घर वाले भी नहीं देते। प्लीज। अभी अभी तक तो उसके रिग्रेट कर बाद रहा था, इसकी स्टोरी के बाद मैं कहा ठीक है चल नहीं गया। क्योंकि मैं डेफिनेटली खोता। मैं वही तो, उसके बाद से आई मेक श्योर कि मैं कहीं पे भी हूँ एटलीस्ट एक शर्ट मुझे मेरे स्कूल के किसी इंसान की दिखती रहे। एक शर्ट, शर्टों पे ध्यान रखता था मेरा। हाँ वो रहा, वो येलो चेक, यस। that's my school. मतलब what I हाँ remember स्कूल। is कि एक और ठीक है भाई, सॉरी, yes you were a part of our school, we'll give you that, है ना गौरव? थोड़ा सा तो था, थोड़ा सा तो था, उसको उसको भी हटा दे तू। थोड़ा सा। या मतलब what I remember is कि जब उसी आई थिंक वो उसी दिन था जब हम, ये अक्षरधाम वाला दिन था या मे बी कोई और दिन, जब नेहरू प्लेनेटोरियम पे गए थे, और उसके साथ में जो वो, सेम डे। हाँ इट्स द सेम डे, नेहरू भाई म्यूजियम भी है आई थिंक वहां पे, जवाहरलाल नेहरू भाई मुझे म्यूजियम। लिटरली यस ये यस नहीं यस समझ यस। आया, हमको नेहरू प्लानिटोरियम बोल के बस म्यूजियम घुमा के ले आते थे, प्लानिटोरियम बोलते थे बंद नहीं है। मेरे साथ हमेशा ये नहीं हुआ है, हमें 4 बार गया हूं मैं। नहीं हमने वीडियो हमें तो देखी, घुसा मैं भी नहीं गया सकते हूँ। थे जितने बंदे थे हम। उससे पिछली बार जब नहीं वो हमको ले गए थे स्कूल से, तब दिखाया था उन्होंने। हाँ हाँ। नहीं मुझे यार लिटरली थोड़ा थोड़ा हमारे याद स्कूल आ प्लानिटोरियम वाले। रहा है बोल कि के वो म्यूजियम दिखाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू का सोफा। ऐसे क्या करे वो अरे देख के। हाँ, मतलब ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि सोफा दिखा दिया, उसका रूम दिखा दिया, कहले यहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे बैठते वही तो। थे। मैं कहा, अब क्या करूं? इवन बचपन में व्हाट इवन डू आई बचपन डू में विद आई दैट वाज सो इन्फॉर्मेशन? कंफ्यूज्ड। यस, इवन बचपन में आई वाज सो कंफ्यूज्ड। वो नेहरू जो भी था, मतलब उस जगह ले जाके हाँ। एक, अगर तुमको याद हो तो, एक ऐसे ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, खजाना रखा होता है वो हम्म। शीशे के केस में बंद करके, हाँ लेजर से है, कुछ फायर होएगा, कुछ ऐसा कुछ। या वहां पे कहीं पे एक चश्मा रखा हुआ है, ठीक है, एंड आई डोंट नो हु टोल्ड मी कि ये गांधी जी का चश्मा है। मैं कहा लेकिन ये घर तो तुम नेहरू जी का बता रहे थे, क्या हो रहा है ये? एंड दे सेड बाहर जाके कि जहाँ पे वो हे राम सा बना हुआ है, बोले कि गांधी जी यहाँ मरे थे। मैं कहा साथ रहते थे ये लोग? Oh man, बहुत कंफ्यूजिंग था भाई, बहुत कंफ्यूजिंग था। बहुत ही। So, I'm so pleased that all of you are here. I'm genuinely glad. ठीक है, और especially like I wanted all of you here because today the topic that we are going to discuss is something which is a very like varied topic, और हम चारों में ना वो variation available है. And what I'm talking about is career. As you know, I'm a professional dancer, and Gaurav is doing a job, a full-fledged job. Gautam has a company of his own. He has started something of his own, and Arindam is also doing, business. So, career is something that all of us have a very different path that we are traveling on. So, I really wanted to talk about career today, and specifically, what I wanted to talk about was this question that how important it is to be ambitious about your career. And when I say ambitious about your career, what I exactly mean is कि मतलब आज के टाइम पे there are so many different careers available for people to choose. I'm just talking about maybe some teenager who has just come out of school, और अभी वो सोच रहा है कि अभी मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं जो मुझे लाइफ में आगे लेकर जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो बीइंग एम्बिशियस आई जेन्युइनली फील कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू हैव टू एम हाई, वरना तुम अगर छोटे पे रहोगे तो तुम छोटे पर ही रह जाओगे, एंड यू विल नॉट रियली बी एबल टू इवॉल्व. सो इवन इफ it is something traditional as an engineer,
or maybe as a doctor, or anything for that matter, ranging to a career like mine as I'm an artist. So even in those particular careers, being ambitious is very important, I feel. And I really want to like know about y'all's perspective. So over to you guys. Gaurav, what do you think? Well, yes, Sumit, I like totally agree with you. You should be ambitious about your career at any point. एंड जहाँ तक कि मेरे को लगता है एम्बिशियस एंड एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा तेरे पॉइंट में, दैट इज यू शुड एटलीस्ट इंजॉय वट यू आर डूइंग. ठीक है, लाइक आई एम डूइंग अ जॉब हेयर. ठीक है, एंड अगर आप देखो कि लोग ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग होता है उसके हिसाब से लोग जॉब्स को ये मानते हैं कि काफ़ी बोरिंग होगा, ये कुछ भी होगा. बट वट एवर यू डू यू शुड enjoy it. That's what all I want to say. All right. Gautam, do you want to take it forward? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एम्बिशन सब कुछ होता है, मानता हूँ मैं, लेकिन इवेंचुअली अगर तुम्हारे पास वो एम्बिशन फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ एक प्रॉपर मोटिव ना हो ना, तो वो एम्बिशन पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइफ में. सो मेरे लिए जाए करंटली जिस करियर में मैं हूँ, वो मेरा एम्बिशन तो नहीं था, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो जो मेरा एम्बिशन था पहले वाला मेरे करियर करंटली से बिल्कुल अलग था. बट अब जो वो एम्बिशन है मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि जो मेरा करियर चल रहा है मैं उससे बहुत खुश हूँ और इसी में लाइफ में आगे जाना चाहता हूँ. सो आई कैन से आई कैन स्विच माई एम्बिशन अकॉर्डिंग टू माई वे, लिटरली. That's an interesting statement. Okay, we'll come back to it. But before we go ahead, Arindam, do you want to say something about that? मेरे हिसाब से भी अगर आपको अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है तो डेफिनेटली एम्बिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बिना एम्बिशन के आप चलोगे तो गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी. जैसे गौरव ने बोला कि एंजॉय करना पड़ेगा आपको, जो भी कर रहे हो उस काम को. अगर एम्बिशन नहीं होगा तो एंजॉय कैसे करोगे? तो वही बात है. बट मैं गौतम से थोड़ा सा और इलेबोरेट करवाना चाहूँगा कि जो उसने बोला कि वो स्विच कर सकता है अपने एम्बिशंस को, थोड़ा सा मैं और थोड़ा उस पर इलेबोरेट चाहूँगा, इलेबोरेशन. लाइक एलैबोरेशन इन व्हाट टर्म्स? लाइक करियर स्विच के हिसाब से या जो एम्बिशन के हिसाब से जो करियर स्विच करने की बात हुई थी उस पे? ओके, मैं बताता हूँ. सो इवन आई वांटेड टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन कि जब तू कह रहा था ना कि मतलब मैं अपनी मर्जी से आई कैन चेंज माय एम्बिशंस सॉर्ट ऑफ, मतलब you when you said that, what जस्ट लाइक exactly सी, did you mean by that? आज के टाइम में एम्बिशन इज जस्ट लाइक कि एक वर्ड है कि बंदे ने कुछ सोच लिया और वो चीज़ वो करने के लिए कुछ भी झूठ देता है और वो काम वो करके रहता है, राइट? और ये हमेशा से इसकी स्टेटमेंट यही रहती है. बट सर्टेन टाइम्स तुम्हारा जो एम्बिशन होता है वो डिपेंडेंट होता है तुम्हारे सिनेरियोज पे. सो जब मैं एम्बिशन की बात करता हूँ तो मेरे लिए एम्बिशन ये नहीं है कि मुझे ये वाली चीज़ किसी भी तरीके से हासिल करनी है तो मेरी वो वाली चीज़ पूरी होगी तो मैं तब सेटिस्फाई होऊंगा. मेरे लिए एम्बिशन ये है कि अगर मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने एम्बिशन के अंदर कुछ ही मॉडिफिकेशन कर पाऊँ, चाहे टू एन एक्सटेंट वो 100% ही हो, लेकिन आगे जाके वो मुझको उसके मुकाबले और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है. सो व्हाई नॉट स्विच दैट एम्बिशन एंड व्हाई नॉट यू कैन टेक अ डिसीजन दैट कि हाँ तुम लोग वो कर सकते हो या नहीं कर सकते. दैट्स द होल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. Okay, well, talking about ambition, I quickly here, want to just brush through this thing that I wanted to talk about. कि तुम लोगों को क्या लगता है जो आजकल के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, who are on the verge of choosing their careers and finalizing some path for themselves, what are the different hurdles and obstacles that you think जो आज के टाइम पे उन्हें फेस करने पड़ते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ तो वो अक्सर अभी और लोगों के साथ भी होता ही होगा. एक जो सोसाइटल प्रेशर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, यू हैव टर्न 23-24, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो स्ट्रेट अवे आपको कमाना है. एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बेस्ड ऑन माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो वही सीन मेरे साथ भी हुआ.
तो उस प्रेशर के चलते मेरे पास ऑप्शंस, मैंने एज यू हैव मेंशन्ड कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो अवेलेबल चॉइसेस लिमिटेड थी एज पर माई एकेडमिक्स। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं वही चूज़ करूं, और अगर मैं वो चूज़ नहीं करना चाह रहा, कुछ और मेरे दिमाग में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कन्विंस करना पड़ा, अपने आप को मतलब सबको मनाना पड़ा कि मेरे को इसमें नहीं जाना, किसी और में जाना है। तो एक तरह मैं बॉयल डाउन करूंगा कि एक सोसाइटल प्रेशर जो है मुझे भी आया, और ऑब्वियसली आगे जो और बच्चे हैं उनको डेफिनेटली आ रहा होगा। Okay, societal pressure. I'll just write it down for a while before we go to Gotham for his inputs, and we'll come back to this. It's a very interesting thing that we can talk सी about. Yeah, ऑब्स्टेकल्स की Gotham. बात अगर हम करते हैं ना, तो समटाइम्स हम लोगों के ऑब्स्टेकल्स हम खुद ही अपने लिए बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अपना माइंडसेट हम लोग पहली बारी में ही खुद क्लियर नहीं कर पाते, लिटरली। Okay, that is a big statement to make. Wow. सी Please जब हम elaborate. Yes. देखो, लिटरली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आज के टाइम में ना, बंदा जो होता है वो इतना खुद को कैपेबल समझता ही है, चाहे वो कॉलेज से निकले, चाहे वो स्कूल से 12th के बाद निकले, वट। हमारे टाइम के ऊपर ये होता था कि नहीं, हमको पता है कि हमारे पास सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए बॉय। लिटरली देखो, हम लोगों को ना ये वाली चीज़ होती है कि तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तुम लोगों को भाई साहब कमा के देना है, ये होता था। हाँ मतलब बट आज के टाइम में वो वाली रियायत ना बच्चों के ऊपर से हट चुकी है। आज के टाइम में बंदा अपनी मर्जी से अपनी चॉइसेस कर सकता है, राइट। सो द मेन पॉइंट जो आज के टाइम में ऑब्स्टेकल है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक बंदे को तुम इतने ऑप्शन ऑटोमेटिक दे रहे हो सामने से, वो बंदा अलग अलग चीजें स्विच करेगा ही। okay. सो एक बार का माइंडसेट बनाना भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। अगर बंदे ने आज के टाइम में, अगर हम करंट एरा की बात करें, अगर उसका माइंडसेट बन गया ना, और वो माइंडसेट उसका क्लियर है कि उसको फोकस करके चलना है, सो उसके ऑब्स्टेकल्स ऑटोमेटिकली उसमें से हटते जाएंगे। सो मेरे लिए उसका करंट ऑब्स्टेकल उसका माइंडसेट ही होगा, एज पर माई थ्योरी। Pata, what you just said, I think this will relate very beautifully to what Arindam had said based on societal pressure, right? So yes, like just hold on your thoughts, the two of you. Before we go to Gaurav, Arindam has just a quick thing to add, and once Arindam adds it, Gaurav, you can go ahead with your thoughts on this, and then we will come back to that societal pressure ka point for sure. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो गौतम ने बात करी कि बहुत मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक हमारा माइंडसेट सेट होना भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो मतलब वो बात तो है ही, मैं बस ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ ट्राई कर रहे हो, किसी एक में आपने ट्राई किया और आपको नहीं मज़ा आया, ट्राई करने का मतलब है मेरे, आपने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के 2 to 3 ईयर्स भी अगर इनपुट दिए हैं उस चीज़ में, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, तो इट्स ओके टू स्विच योर स्ट्रीम। उसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि आफ्टर इट्स योर लाइफ। तो आपको कभी मतलब कभी आफ्टर इट्स योर लाइफ आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपने इसको जीना है, लिटरली जीना है, कमाना भी इसी से है, खुश भी इसी से रहना है, घर भी इसी से चलाना है। तो आई वुड सजेस्ट कि इट्स मतलब बिना डरे, अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो आप स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। So Gautam and Arindam, they both explained it really good. मैं मतलब पूरा एग्री करता हूँ उन दोनों से। बट सुमित, जैसे ही तूने अपना क्वेश्चन पूछा था ना अबाउट हर्डल्स, सो जैसी तरह क्वेश्चन सुना, जो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आई थी, द बिगेस्ट हर्डल I can think of is the number of options a guy have after his 12th or after school to do. That can be a hurdle, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभी अरिंदम और गोटी दोनों के पॉइंट को रिलेट करना चाहूँगा कि जब आप 12th से निकलते हो, जिस टाइम पे हम भी थे, जब हम 12th से निकले थे, तो हमारे सामने ऑप्शंस काफ़ी सारे थे Okay. दैट व्हाट वी कैन डू, और हम उसको नहीं सोच पा रहे थे कि हमने एक्चुअली करना क्या है।
ठीक है। सो एक प्रॉपर फर्स्ट माइंडसेट होना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ हर्डल जब किसी इंसान के पास आपका फर्स्ट माइंडसेट नहीं होता कि आपको कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट करना है। क्योंकि लाइक व्हाट अरिंदम सेड, यू कैन स्विच और यू कैन डू थिंग्स, बट जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेते हो इट्स हार्ड टू थिंक अबाउट अदर्स। जब आप पहले स्टेप के लिए सोच रहे होते हो कि मेरे को किस सीढ़ी पे चढ़ना है। Okay, that's a great point actually. Matlab, okay, I never thought this as a hurdle, to be honest. But okay, it's an interesting point. Yeah, Gotham. मूव्स टू द अरिंदम्स पॉइंट कि बंदे को हर चीज एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए अगर वो एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट? Uh-huh. आई गेस मैंने सही सुना. Yes. But if particular person has made his mindset for the first thing, so he must have actually trusted his willpower and skill set also while choosing that, Yeah, and I guess he must have thought about it for sure. obviously. So if a person is choosing something with his proper skill set, and during that he is also using his mindset at that same point of time, so if he is switching from that point of thing, so that must be like due to some circumstances that must have come before him, right? Right. So to overcome that, also he needs some other mindset to overcome that. So eventually, obviously ना, if you are, yeah, अगर आप literally किसी चीज को overcome करना चाहते हो, Uh, you mean other mindset or maybe some sort of guidance is what you mean, right? actually, because you definitely need that ना. That's the main Yeah, point. yeah. I completely agree. But also, like, very quickly on Arindam's point, what he said, na, I would completely agree with him, like, majorly over every point that we discussed, क्योंकि मैंने वो सेम चीज करी है. मतलब I have worked in a corporate. Then I didn't enjoy it, so I left it, and then I started dancing and like started my whole professional career in dancing. And because of like some reasons, I also started doing some other things. Like I started working on my editing skills, working on my uh, stand up that I'm like currently pursuing. I'm really loving that. So it has only come because i I just thought ki matlab, why not, man? Like if this one thing is not giving you enough, or okay, I'll put it in a better way, that if like there are multiple things that you can actually do and do well, and balance them in a good way, then why not? Like sure, go ahead with that. But to balance that, Yeah. let me just first ask you कि अगर आपको कोई चीज बैलेंस भी करनी है, राइट? अगर आपके पास प्रॉपर वो स्किल सेट नहीं है जो आप स्विच करना चाहते हो, एज पर योर चॉइस, राइट? Okay. उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है आप अगर चॉइसेस ले रहे हो ना, वो चॉइसेस आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी आपको वो टाइम चूज करने पे वो करेगा, लाइक कि हाँ तुमको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट? Absolutely. सो अरिंदम्स पॉइंट वाज दैट कि हाँ फैमिली वाला जो चीज होती है वो होता ही होता है, उस चीज को मैं नेग्लेक्ट कभी नहीं कर सकता, फॉर श्योर. Mm-hmm. बट वो जो फैमिली का सर्कमस्टेंस होता है, वो सर्कमस्टेंस तुम्हारे करियर को चूज करने में एक महत्वपूर्ण रोल देता है, तभी वो पॉइंट एक ऑब्स्टेकल की तरह हुआ है. Yeah. बट इफ अगर वो ऑब्स्टेकल आया है, उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए भी एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल होता है ना, कि नहीं तुमको अपने दिमाग में ये वाली चीज को माइंड में रखना पड़ता है कि तुमको वो चीज फैमिली के बेस से अपने पैशन को फॉलो करते हुए कैसे करनी है. Matlab, okay, I would not really call that an obstacle, but yeah, like I get what you're saying. I completely get what you're saying, but I would not really call it an obstacle as such. Arindam, do you want to chip in? आई गेस आई एम एज्यूमिंग दैट गौतम ने कुछ करना था, वो नहीं कर पाया ड्यू टू दिस फैमिली प्रेशर. तो अब वो जो कर रहा है वो उसी के मद्देनजर रखते हुए वो कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो जो कर रहा है वो कम्प्लीटली हैप्पी है उसमें कि नहीं.
Wow, that sounds like a soul read, man. Actually, he got me right, He's right. and he's right. Oh my God. Literally, he's right because as per my ambition was to be a cricketer at that point of time. I would be rather more happy if I have got selected in under 17 in Delhi's team also Wait, now in nowadays. you wanted to be a cricketer? Obvio, you can ask Gaurav also. I Yeah, like I don't know, man. That's a big surprise for me as well. yeah, literally Well, I know that. I know that. I introduced you as my best friend, and now it feels like that I don't even know, man. I don't even know yeah, you. because you don't even played cricket now. So how could you know that? You can just cry after this podcast about this. But yes, क्या गौतम, he was really ambitious about cricket, and in school time he wanted to join a team or academy maybe, but he didn't. क्या गौतम यार, खाम खा इनको सुमित को बेचारे को बचपन में हरा दिया। तेरे साथ खेलना था ना, कुछ कंपटीशन तो मिलता। Now I genuinely want to cry, यार। अब मेरे को इंट्रो चेंज करना पड़ेगा पॉडकास्ट का। I don't want to call him best friend now. Plastic best friend. Oh man, what the hell? Okay, anyway, पता है एक ये भी चीज है कि मतलब I completely agree what Gautam is saying, and I just want to like tie it again back to where we first wanted to come about societal pressure. मतलब we are putting it societal pressure, but in his case particularly, it is the family pressure, of course. ठीक है, and it is one or the same thing. So coming back to societal pressure, of course, like we have a live example that we know of today, but in general, मतलब what do you guys think are major things जो ऐसा हमें सुनने को मिलती है about career? Yes, like जो तेरा क्वेश्चन है कि जब मेजर जो चीज़ें हमको सुनने को मिलती है लाइक सोसाइटल प्रेशर्स में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिक चीज़ें जैसे ही आप बेसिकली आप ग्रेजुएट होते हो, आप अपना कॉलेज करके निकलते हो, ठीक है, व्हाट योर पेरेंट्स वांट कि आप अब कहीं से एक स्टेबल अर्निंग कमानी स्टार्ट कर दो, सो दैट यू कैन स्टार्ट बीइंग अ स्टेबल गाय। आप एक डिसेंट अर्निंग ले सको जिसके बेस पे आप अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट कर सको, ताकि आप स्टेबल हो जाओ, देन यू कैन गेट मैरिड, हैव चाइल्ड एंड तेरी लाइफ सेटल हो जाए। तो उस वो करवाना चाहने के चक्कर में आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं कि आप जल्दी से किसी एक इनकम सोर्स की तरफ भागें। लाइक सुमित, यू नो दैट वेरी वेल कि मैं भी चाह स्टार्टिंग से यही रहा था कि मैं भी डांस में निकलूं किसी तरह से हाँ, आफ्टर कॉलेज, I know. एंड यू नो सेम जर्नी से गए थे। उस टाइम पे हमें बहुत टाइम लग रहा था उस तरफ जाने में, तो बट क्योंकि पेरेंट्स उस चीज़ के लिए उतना टाइम नहीं देना चाह रहे थे या फिर नहीं दे सकते थे या फिर दे वांटेड मी टू बी अ स्टेबल, आई हैड टू जॉइन अ कॉल सेंटर फॉर दैट। आई वर्क इन अ call center just to get some income to show my parents कि now I'm trying to be stable, and I tried to manage dance with that. So मेरे हिसाब से first thing what they want is a decent earning from their child. That is what you are pressurized for. Yeah, I mean stability is one of the major things, right, that they want. कि तुम बस ऐसे अच्छा सा कुछ नौकरी वोकरी लेके ऐसा रेगुलर इनकम आती रहे। Yes, yes, yes. They are like कि अब तुमने पढ़ लिख लिया है, now you start your life, and their definition of starting a life is like legit starting it by earning and doing what a adult should do according. हाँ मतलब पता है इट्स ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, हु डजंट वांट स्टेबिलिटी, बट वेयर द प्रॉब्लम लाइज इज देयर पॉइंट वेयर दे से कि उनके लिए अभी भी स्टेबल जॉब्स ना सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स हैं कि कॉरपोरेट में काम करो, इंजीनियर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब्स करो, एसएससी यूपीएससी की तैयारी करो।
So all of these things are what they consider stable and not like actual so उनका stability का मतलब actual stability नहीं होता. Somewhere in the hindsight what they are sort of trying to tell us is कि तुम ये सब करो तभी तुम stable कहलाओगे. All these things you have mentioned holds true, definitely. But the point is, ये जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ये सब इनका स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बट यहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है कि कोई भी सोसाइटी और पेरेंट्स इस तरफ ध्यान नहीं देता कि मेंटल स्टेबिलिटी इज मस्ट, शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मेरा कहने का मतलब है मेंटल स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है. अगर आपको लाइफ को लिटरली जीना है, कोई एक चीज आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने लाइफ लॉन्ग वो करना है, तो डेफिनेटली मेंटल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से पहले. बट सारे के सारे इस टाइम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं. पता नहीं सोसाइटी का ऐसा मतलब अपब्रिंगिंग हो रही है यूथ की, या कैसे क्या हो रहा है. मतलब the sort of work life that we are experiencing in today's day and age, and given the mental health of all the employees who are working, especially after what we have just experienced, the worst year possible for any employee or any worker in any industry for that matter, mental health हैज टू टेक अ प्रायोरिटी. लेकिन वो वर्क लाइफ ऐसी हो जाती है, इतना मतलब घिसा जाता है ऑफिसेज में, इतना लोगों को ओवरवर्क कराया जाता है. वो ओवरवर्क और लेस पेमेंट वाला तो लाइक इट्स एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक दैट वी कैन टॉक अबाउट लेटर. बट लाइक मेंटल हेल्थ के बारे में जैसे अरिंदम कह रहा था, मेंटल स्टेबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. तो वो मेंटल हेल्थ की अगर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, अगर मेंटल हेल्थ भी हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगेंगे, तो दैट मेंटल स्टेबिलिटी वाला पार्ट विल स्टार्ट कमिंग इनटू दैट. तो दैट इज ऑफ कोर्स देयर. और मतलब एक ये भी चीज है कि आवर पेरेंट्स वांट कि हम थोड़ा ऐसा ज्यादा रिस्क विस्क ना ले. मतलब वो चीज मेरे को एक और बहुत अजीब लगती है कि आई अंडरस्टैंड कि उनके टाइम पे इतना कुछ नहीं उनको देखने को मिलता था, and they are completely right in their place when they say ki you have to go for a stable job or maybe like something very linear, if I can say that. तो वो risk aversion वाला चीज हमेशा से उधर रहता है. And like that is also one point where I like stand strongly कि this is a time where we can take risks. ठीक है, and we should actually, क्योंकि अगर पहली बात तो वही कि अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. और ऑल्सो लाइक नाउ इज द टाइम वेयर ये जो रिस्क टेकिंग चीजें होती हैं, नाउ इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली रीप रिवॉर्ड्स. दिस इज द टाइम वेयर लाइक पीपल आर स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि पैंडेमिक ने सिखाया ना लोगों को. इस करंट पैंडेमिक ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी हर बंदे के लिए कि नहीं, तुमको कुछ ना कुछ अर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सोर्सेज ही कम रह गए. तुम घर पे बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? एक खुद की वीडियोस बना सकते हो. अगर ऑफिस का काम मिल भी रहा है वर्क फ्रॉम होम से, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको ऑफिस वाला ये बोलेगा नहीं यार तेरी मेंटल हेल्थ जरूरी है, तू कम काम कर ले? उल्टा उसको तो ये पता है कि अब तू घर पे बैठा है भाई, अब तो तेरे ज्यादा काम करके देगा मुझे. सो आज के करंट सिनेरियो में ना मेंटल हेल्थ एम्प्लॉय लेवल पे ना बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ऑल्सो जो अभी सुमित ने पॉइंट बोला रिस्क वाला, उस पर मैं मतलब आई एग्री ऑन दैट कि आज के टाइम पे जो हमारी जनरेशन है, हम रिस्क लेना काइंड ऑफ चाहते भी हैं. मतलब जो पहले वाली हमारी जनरेशन थी, दे डिडंट वांटेड एनी रिस्क देयर लाइफ, दे जस्ट वांटेड अ क्विक स्टेबिलिटी एज सून एज दे कैन गेट इट, दे कैन अचीव इट. पर हम चाहते हैं कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत भी आता है विल गो फॉर द नेक्स्ट जॉब. अभी इस चीज़ से मैं सिर्फ एक बताना चाहूँगा, अभी मेरा एक कज़न था, मेरी कुछ टाइम पहले उससे बात हो रही थी, एंड
मैंने उसको जैसे ही बताया कि भाई मैं अभी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब कर रहा हूँ, हिमाचल रह रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, तू एक कंपनी में क्यों नहीं टिक रहा, वाई यू आर जंपिंग है, तेरे को पता है कितना रिस्क है, तू कभी भी एक पक्का नहीं कर पाएगा, तू कहीं पे भी इतनी वो नहीं कर पाएगा, हर जगह जाके तेरे को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यस, मतलब वी आर द पीपल जो रिस्क ले सकते हैं, बट दे नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट। आई टोटली गो विद सुमित ऑन दैट। और पता है इन सब में ना एक ये चीज भी काफी सुनने को मिलती है कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर द सेफेस्ट पाथ दैट यू कैन फाइंड. And again, as I've said multiple times, कि we understand where they are coming from. They obviously want the best for us. बट आज के टाइम पे फिर वही सेफ पाथ की भी उनकी डेफिनेशन वही होती है कि जॉब करो और ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, फिर पैसे कमाओ, यू नो, वो जो सो कॉल्ड अगेन ट्रेडिशनल थिंग्स की इंजीनियरिंग करो, मेडिकल कर लो, ये सब चीजें कर लो. तो मतलब इनका ना मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट दे वांट टू से दे आर वेरी गुड फॉर अस, बट उनकी जो डेफिनेशन उन्होंने बनाई हुई है ना, वो फिर वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आता है. या लाइक आई टोटली एग्री विद सुमित कि वो हमारे लिए ना एक सेफ सा पाथ चुनना चाहते हैं, और उनके लिए सेफ पाथ का मतलब वही है दैट ट्रेडिशनल थिंग, यू डू योर graduation, go for a job, go for a government job, or become an engineer, a doctor, or those few options. But पता क्या, हर बार ये सारी चीज़ें ना इतनी ईजी नहीं होती जितना उनको एक एज अ सेफ पाथ पे फ्रेम करके देते हैं। हर बंदे के लिए वो चीज़ उतनी ईजी हो नहीं पाती, क्योंकि बंदे जब वही बात है, जब उस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाह रहे होते हैं, तो इट कैन बी रियली डिफ़िकल्ट जब आपके दिमाग में कुछ बेसिक आपकी ज़रूरतें होती है, आपके दिमाग में आप जो चीज़ें चाहते हो होना, और वो चीज़ आपके वहाँ पे नहीं हो, आपको उस ट्रेडिशनल पाथ में नहीं दिख रही होती, तो ये चीज़ें काफ़ी कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाती है आपके लिए। इट्स नॉट दैट ईज़ी पाथ, लाइक अ सेफ पाथ और अ ईज़ी पाथ, दिस कैन बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। एब्सोल्युटली आई थैंक कैन यू। टोटली रिलेट विद गौरव, बिकॉज मेरी लाइफ में भी यही हुआ है. बिकॉज जो ट्रेडिशनल चॉइसेस हैं तो मेरे लिए था कि बीइंग एन आईटी गाय, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कि आप बैंगलोर जाके किसी कंपनी में किसी स्टार्टअप में लो, वहाँ रहो, घर से दूर रहो. जो कि मैं नहीं चाहता था कि मैं घर से दूर रह के काम करूँ, अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ूं. आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, बट मुझे ये नहीं करना था. बट जो नॉर्मली लोग स्टेबिलिटी के लिए ऑप्शन चूज करेंगे, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बन रहा था. इसलिए नहीं कि मैं एकेडमिकली कॉम्पिटेंट नहीं था उसमें, मेरा स्किल सेट इनफ था कि मैं सर्वाइव कर जाता. बट छोटी छोटी ऐसी और चीज़ें थी जो मुझे वो रास्ता मुश्किल बना रही थी. तो थोड़ा सा मुश्किल था अपने आप को मनाना, सब बाकी सबको मनाना. बट ठीक है, कर लिया चूज. नहीं किया, उस ट्रैप में नहीं फंसा मैं, और थैंकफुली नहीं फंसा. Okay, well, that was a big discussion. बट मतलब मैं एक ये भी चीज सोच रहा था जब हम लोग सब बात कर रहे थे ना इन सब चीजों के बारे में, कि एज वी वर टॉकिंग कि हमारी जनरेशन इज समवन जो हम रिस्क टेकिंग माइंडसेट है हमारा, हम प्रेफर करते हैं थोड़ा कि ऐसा कुछ हम कर सकें. तो वो चीज कहीं से तो ड्राइव होती होगी ना, तो वो मोटिवेशन जो आती है ये चीज करने की, दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी डांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो देयर वाज सम मोटिवेशन बिहाइंड माय करियर चॉइस एज अ डांसर which actually led me to choose this path. तो तो तुम लोगों का क्या क्या मोटिवेशन था, which made you guys choose what you are doing today? तो मतलब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरा जो था वो मेरे लिए ये था कि स्टार्टिंग में जैसे मेरे को करना था, डांस करना था, या फिर मैं भी कुछ पैशन फॉलो करना चाहता था, बट किसी भी वजह से मेरे को अर्निंग करनी थी, या वही स्टेबिलिटी वाला रीजन, उसकी वजह से मेरे को जॉब करनी पड़ी.
बट मेरे लिए जो मोटिवेशन थी कि मैं इस चीज में रह सकूं या फिर इस चीज को एंजॉय कर सकूं, वो ये था कि जो मेरे को वर्क एनवायरनमेंट चाहिए था मेरे लिए ना, कि अगर मैं डांस वांस भी करता हूँ तो मेरे को चाहिए कि मैं अपना दिन अगर पूरा काम करते हुए निकालूं, आई कैन एंजॉय दैट। और लकीली मुझे जो पहली जॉब मिली वहां पे ऐसा हुआ कि जो मेरे को वर्क एनवायरनमेंट मिला वहां पे, आई वॉज इंजॉइंग देयर। ठीक है, मुझे काम करने में मजा आ रहा था, काम करने के अलावा आई हैड टाइम वहां पे भी काम करते हुए भी जो मैं बाकी चीजें करते हुए निकाल सकता था। ठीक है, एंड सीरियसली बताऊं तो सिर्फ वो कुछ चीजें थी जिन्होंने मेरे को इस चीज में बनाए रखा, लाइक जॉब करने वाली चीज में बनाए रखा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो पैशन छोड़ के मेरे को जॉब करनी पड़ी थी, इट वॉज रियली लाइक बैड फॉर मी। मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी घर वालों को मनाना चाहिए किसी ना किसी तरह कि हाँ भाई चलो सुमित के साथ निकल जाता हूँ डांस के लिए। बट kept me going वो जो वहां पे मेरे को वर्क एनवायरनमेंट मिला, एंड सेम चीज जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ अब मैं थोड़ा बहुत सीख भी गया हूँ वो एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना। ठीक है, और मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ ज्यादा नहीं। मेरे लिए मोटिवेशन मेरा वर्क एनवायरनमेंट और मेरी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब से, वो था जो मतलब जिस तरह की मैं लाइफ जीना चाहता हूँ वो मुझे मिल रही है, दैट वाज इट। फॉर मी, मेरा तो एक सिंपली एक मोटिवेशन था कि मुझे बस अपने फादर को हेल्प करनी थी, और आई वांट टू सी हिम सक्सेसफुल। अभी भी है वो, बट अच्छे ग्रेटर लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे तुम लोगों को पता ही है यार ऑलरेडी कि हाँ, मेरे को सोशल रहना बहुत पसंद है शुरू से। सो मेरे लिए जो बेस्ट चॉइस हो सकती थी मेरे करियर बेस पे, वो हो सकती थी कि हाँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं हर बंदे सोशली इंटरेक्ट रह पाऊँ। सो जब मेरे को मोटिवेशन की बात होती है ना, सो जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे को सबसे ज्यादा ये चीज लगती थी कि नहीं यार, कुछ ऐसी चीज है कि जिससे मेरे को थोड़ी सी और विजिबिलिटी मिले, कुछ कुछ करें। लाइक फेमस होना सबको पसंद है। सो वो वाली चीज के लिए सबसे अच्छी चीज यही रही कि हाँ, तब डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम थोड़ा थोड़ा आ ही गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स डू दैट, क्योंकि इसके ऑप्शंस चल रहे हैं। सो उसी के बेस पे मैंने अपना करियर को आगे बढ़ाया। मेरे को डीएम सीखना था। तो मोटिवेशन तो यही थी कि हाँ, चाहे मेरे को नोएडा जाना पड़ा अपनी पहली जॉब के लिए, इवन फॉर द 5,000 पर्क्स, बट एटलीस्ट मेरे को सीखना था कि वो चीज़ कैसे होती है जिससे मैं आगे आगे खुद को ग्रो कर पाऊँ। रेस्ट कि आज के टाइम में टच ठीक है, आई एम अ बिजनेस ओनर इन दैट करंट फील्ड। सो दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी अ लॉट। दैट्स माय स्टोरी। Yeah, right. Like this motivation is the only thing, I feel that should be necessary. और मतलब एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि मोटिवेशन, पता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा जॉब करने का। तो मतलब वट एवर योर मोटिवेशन इज, चाहे वो अभी जॉब स्टेबिलिटी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी है, आई मीन वट एवर योर मोटिवेशन इज, I would say just stick to it and let it grow. क्योंकि अगर मतलब ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि इफ यू आर हैप्पी with what you are doing, and if like whatever motivation that you have, it is driving you enough to keep you going, forward in life, तो it's good, I believe, है ना? तो just like keep at your motivation. बस मोटिवेशन कुछ ना कुछ बना के जरूर रखना, एज I said, even if it is पैसा, or even if it is anything for that matter. So yeah, motivation is an integral part, and that should always be there. But मतलब एक और चीज नाउ दैट आई वांट टू क्विकली ऐड इन हियर इज कि हम एक बार ना बीच में ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उन लोग के पास ऑप्शंस नहीं थे, और अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इन द सेंस कि वी हैव वे टू मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर एज कंपेयर टू देम। और मुझे मतलब, क्या तुम लोग को भी ऐसा लगता है कि लाइक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस why they think the way they think, and they are
sort of it's difficult for them to accept our choices when it comes to career? Obviously. Yes, like I'm with you on this, क्योंकि ऑप्शन वाला पॉइंट मैं काफी देर से बोलना भी चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये है कि जो अब वाली जनरेशन है, लाइक जो हम है, जो हम और हमारे बाहर में जो भी अभी जो टीनेजर्स हैं जो किसी जॉब के लिए या फिर अपने करियर के लिए जाने वाले हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं क्योंकि हमने देखा है, लाइक सिर्फ इतना नहीं, हमारे माइंड में भी एक स्टेबिलिटी वाली चीज रहती है। हम भी किसी उसकी तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे हम कमा सके, हम ऐसी बात है, इट्स नॉट लाइक कि हम कहीं पे भी हाथ पर मार, बट हमने वो चीज होती हुई देखी है। लोगों ने पैशन को फॉलो करके पैसे कमा रहे हैं, हमारे साथ के बंदे कमा रहे हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हो, बंदे कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। आप बेसिक कोई भी जॉब कर रहे हो और आप पैसे कमा रहे हो, तो हम उन दूसरे ऑप्शंस को टेबल होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। बट जो हमारे पहले वाली जनरेशन थी, उनके पास ऑप्शंस उनने ज्यादा देखे नहीं, उनने देखा नहीं कि बाकी लोग मतलब अपनी लाइफ दूसरी चीज में बना, किसी दूसरे ऑप्शन में बना पा रहे हैं, इसलिए उनको रिस्क लेने में भी थोड़ा डर होता था कि अगर जो वो चीज फॉलो कर रहा है, अगर वो ट्रेडिशनल चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे या नहीं। बट जैसा अभी गौतम ने बताया, डांस मतलब क्रिकेट छोड़ा, डांस तो मैंने छोड़ा क्रिकेट छोड़ा, क्रिकेट छोड़ने के बाद डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, काम किया, उसके बाद नाउ अपना खुद की कंपनी स्टार्ट की है। तो वो सब इसलिए क्योंकि इसे पता था कि ये वहां पे कर सकता है या फिर इसके पास ऑप्शंस हैं। बट हम ओल्डर जनरेशन देवर लाइक कि वो जो चीज कर रहे हैं वो वहीं पे स्टिक रहना चाहते थे। लाइक मैंने बीच में एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि मैं मेरे जो कजन है जो मतलब एज में बड़े हैं मेरे से काफी, उनने मेरे से ये कहा था कि तू कंपनी इतनी को चेंज कर रहा है, तेरे को एक जगह टिक के रहना चाहिए, तभी तो कुछ हाई कर पाए। तो वो चीज है, दे यू नो अवॉइड ऑल द ऑप्शंस। वो चाहते हैं कि आप जहाँ पे एक जगह हो गए वहीं पे रहिए, बट वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। ये थोड़ा सा फर्क है। और मतलब एक ना ये चीज भी है कि दिस इज ये मतलब मैं अपने और अपने सराउंडिंग्स के टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे या जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, they were sort of building the base for us, sort of like for our lifestyle that we are living today, है ना? तो उस टाइम पे मतलब वो लोग बस, so all of us we belong to fairly middle class families, right? And the conditions, like the social conditions or living conditions of our families were not really like this comfortable, if I may say, 20 years ago or 30 years ago. So our parents, they chose the best path that they thought of improving this lifestyle. And I think this is also like a very important point कि उन्हीं choices की वजह से हम आज इस pedestal पर खड़े हैं कि हम options के बारे में बात कर सकते हैं। तो मतलब एक ये बहुत ही fascinating point लगता है कि जहाँ पे ना मैं agree भी करता हूँ उनसे और मतलब बहुत ही disagree भी करता हूँ कि like I get it, man. I get what you have done in your life, in your time. Yes, But totally. अभी थोड़ा सा टाइम है एक्सप्लोर करने का और हम कर सकते हैं, तो like, करने दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। Yeah, totally man, totally. Like obviously जो उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, या फिर जो मैंने एक पॉइंट बोला कि हम देख पा रहे हैं सामने उन ऑप्शंस को, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया, तभी वो हमारे लिए ऑप्शंस बने हैं आज। तो यस, दैट इज अ थिंग, उनके पास ऑप्शंस कम थे बट हमारे पास अब हैं। तो दे स्टिल वांट कि उनने जो चीज अचीव करी है हम भी कर जाएं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे थिंक कि ट्रेडिशनल वे इज बेटर, क्योंकि उनके लिए वो चीज काम की है। नाउ इट्स ऑन अस कि हम उनको ये दिखा पाए या फिर हम ये कर पाए, सबके सामने रख पाए कि सिर्फ ट्रेडिशनल वे से जाके ही आप वो चीज नहीं पा सकते जो उन्होंने अभी पाई है, जो चीज उन्होंने अचीव करी है। यू कैन अचीव
by going through other options also. Yeah. And cutting through all of this with the question that we started this discussion with, key it is very important, to be ambitious about your career, क्योंकि वही एक रास्ता देता है, वही एक पाथ तुम्हारे लिए क्रिएट करता है। चाहे जितने भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, चाहे जितने भी कंडीशंस तुम्हारे आसपास की चेंज हो रही हो या नहीं हो रही हो, इफ यू आर एम्बिशियस इनफ, इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ, तो निकल जाओगे यार, तुम कर जाओगे। और उस करने के लिए लेकिन वो एम्बिशन तो ऑलरेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुमित तूने अभी मेंशन किया कि एम्बिशन अपना होना ही जरूरी है, होना ही चाहिए, मैं भी आई सेकंड ऑन दैट, बिकॉज लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सीधा डायरेक्टली किसी और से गाइडेंस लेने के चक्कर में सीधा पूछते हैं कि क्या मैं ये कर लूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि आप किसी से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते कि ये मैं फलानी इंजीनियरिंग कर लूँ या मैं डॉक्टर बन जाऊँ कि नहीं। आपका उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को या फिर करियर को ऑप्ट करने में, क्या मेंटल स्किल्स चाहिए, क्या फिजिकल स्किल्स चाहिए, ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चन होगा। तो मेरी एक एडवाइस है सभी से, जिनसे जो पूछते हैं और जिनसे पूछा जाता है, आप प्लीज़ बस बताएं कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है। आगे बच्चा अपने आप डिसाइड करेगा कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, सेल्फ असेसमेंट। और वो ड्राइव, वो मोटिवेशन उसमें है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Wow, man, that is some great food for thought. Nice. Gautam, do you want to conclude I'm anything with here? Arindam, totally. Same it is. Nothing difference. No difference. Okay, all right. Well, Well, that was one fine discussion, guys. we will I go mean, with copy and paste then. Control C for Gautam. वन या मतलब मुझे जब हमने शुरू किया था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि हम इतना थोड़ा ऐसे सीरियसनेस लाके इतना हम बात कर लेंगे। बट Cause congrats guys, yes, we did it. yes, like हमारे पास इसके लिए एक वो होना चाहिए अचीवमेंट अवार्ड, जो कि मैं रूम में टांग सकूं कि हम 4 बंदों के होते हुए हमने सीरियस डिस्कस किया। Okay, well, thank you so much, guys. Gaurav, Arindam, and Gautam for being here and part of this episode. Well, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई जेन्युइनली होप कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा इस For हमारे sure. डिस्कशन से। सो अगेन Yeah, थैंक यू but सो मच। well, thank you, Sumit. Thank you, Sumit, for inviting us here. थैंक We यू। were really happy when we got to know we'll be part of this. And yes, this was a fun discussion. This is another conclusion from my side. This was a fun definitely. discussion. ओके वेल, मतलब थैंक्स अगेन। मतलब मैं अभी क्या ही बोलूं, फिर मैं इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा ही फॉर्मल हो जाऊंगा, जो हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, दीज आर माई फ्रेंड्स गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर तुम लोगों में से किसी को अपना कुछ प्लग करना है, किसी को कुछ बताना है, फॉलो करने के लिए तुम लोग के इंस्टाग्राम्स मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, इफ एनीवन लाइक देयर ओपिनियंस। और ऐसे भी फॉलो कर लेना यार, ये लोग अच्छे लोग हैं, मतलब हम सारे ही अच्छे लोग हैं वैसे। तो इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, अगर किसी को कुछ और बोलना है तो प्लीज गो I अहेड। love this podcast. Seriously. Well, Sumit, just one thing. I just want to ask you one thing. For this, just invite us again. We really had fun time. So just ping us whenever you need some experts like us to discuss about anything. Please call us again anytime for this. This was really fun.
मतलब हाँ, हम दिन में 4 घंटे जो बात करते हैं उसके बाद भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू गाइस बैक। या डू इट। ओके, बस एक ही लास्ट चीज़ है, एक मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेटमेंट है आजकल का, और ये पॉडकास्ट करियर से रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा जाता है उसके साथ, कि हमेशा याद रखना, एक जिंदा इंसान अपना सफ़र कभी भी शुरू कर सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Oh my god, that was a mic drop statement, dude. भाई तुम्हें बंद कर दिया, मतलब आपको इसी से एंड करना चाहिए था। That was like such a Yeah, such I a know, such I a know. yes, that चलो, was exactly a mic dropping. Drop your mic and now go. इसके बाद मैं नहीं सुनना चाहता कुछ, मैं अपना आज का सेशन I इस लाइन के साथ खत्म करना चाहता all right. So with this, we come to the end of this podcast. Thank you so much for everyone who has tuned in so far and who are here with us. We really appreciate you listening to this. And yeah, we'll see you guys in the next episode. तब तक सांस लेते रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए लिंकन रूट्स पॉडकास्ट। बाय बाय।